Hello, am I audible? Okay, so 1 minute I'll share the screen. Is my screen visible? My voice is 1 minute. Is my voice audible now? Hello, is my voice audible now? Is it clearly audible now? Yeah. Okay, so before we'll proceed, we'll take a quick revision of what we did last class. So I'll take kind of a quiz. Okay, so now before we enter the class, or now what will you greet me? How will you greet me? Hello. Hello. Yeah, so how will you greet me? I was telling about it. So good evening. So what will you say for good evening? How will you greet me now? आप मुझे अभी कैसे greet कर सकते हो? हाँ, konbanwa. Okay. So minasan konbanwa is good evening everyone in English. So what is 42 in Japanese? 42 in Japanese. 42, not 40. 42. 42. Yonjuni. Okay. 65. Hello. 65. What will we say 65 in Japanese? Write 65 in Japanese. Okay, Rokujugo. So now I write it in uh, hiragana. Okay. So this is ro. Then this is ku. Then this is one. This whole both word consist of ju. Okay. Rokuju and then go. Okay. So this is Rokujugo. This is how we'll write in hiragana script. So we'll move on to today's lecture. So आज हम लोग खुद को कैसे इंट्रोड्यूस करें ये सीखेंगे. Okay.
So this is the first slide. This is the general introduction, and the above one is the self introduction. The formal self introduction in Japanese. So my screen is clearly visible, right? Yeah. Actually, I'm having some network issues. So if I'm not audible or my screen is blur or anything, then please unmute yourself and tell me. Anyone can. Okay. So now we'll start. Okay. So this is I'll first speak in Japanese. You can also speak after me. Okay. Hajimashite, Sankarupu desu. Dozo yoroshiku onegaishimasu. Yeah, someone wrote the correct introduction. That was nice. Okay. So again, now can anyone tell me there are two scripts here. इधर दो स्क्रिप्ट है, एक हिरागाना है और एक काताकाना है. तो मैं काताकाना में क्या लिखा हूँ वो आप बताओ मुझे. मैं एक वर्ड काताकाना में लिखा हूँ. वो काताकाना में क्या वर्ड लिखा? या करेक्ट. So in Japanese, my name would be pronounced as Sankarupu, not Sankalp. Okay. And जापानीज लोग र और ल को अलग प्रोनाउंस करते हैं. मतलब वो र और ल नहीं, वो बहुत अजीब रहता है. वो मुझको भी बोलने नहीं होगा अभी. वो इट इज समथिंग बिटवीन आर एंड एल. ओके. सो इट वुड बी लाइक Sankarupu. Different. Okay. I can't speak that. Okay. So now again I'll speak. Hajimashite. Sankarupu desu. Dozo yoroshiku onegaishimasu. Now we'll go from word to word. Okay. So Hajimashite is beginning. Okay. तो आप अभी समझो किसको पहले बार मिल रहे रहोगे, तो आपको पहले बार हाजमे माश्ते बोलना पड़ेगा. So if you are meeting someone for the first time, then you have to start with hajime mashite. Okay, so hajime mashite. Okay, then my name Sankarupu desu. If we'll translate it in Hindi, hajime mashite का कुछ particular begin meaning नहीं है. It's like begin. Okay, so Sankarup desu is I am Sankalp. मैं संकल्प हूँ. और दोजो योरोशिको ओनेगाशिमास भी एक फिक्स्ड जापानीज फ्रेज है. इट डजंट हैव अ पर्टिकुलर मीनिंग इन इंग्लिश और इन हिंदी. ओके. दोजो योरोशिको ओनेगाशिमास इज जनरली मीन्स आफ्टर मीन्स फ्रॉम नाउ ऑनवर्ड्स प्लीज कोऑपरेट विथ मी, प्लीज help me or anything else. Okay. So Sankalp, हाँ this is सर. Santosh Tagle. यस सर. You have to speak, you have to explain everything in Hindi, if possible, bit in Marathi. But many of them don't understand English completely. So ओके आपको ओके. थोड़ा हिंदी, थोड़ा मराठी इस्तेमाल करना पड़ेगा. भले आप थोड़ा धीरे चलिए, कोई जल्दबाजी नहीं है. Take your own time. हाँ सर ठीक है. Okay. या. Try to recollect proper Hindi word. Use it हम्म. properly. It is helpful to you also and all others also. यस Okay. सर. या सर. Please. Thank you. सो अब मैं क्या बोल था. दोजो योरोशिको ओनेगाशिमास इसका एक फिक्स्ड फ्रेज नहीं है. ओके. मतलब if we try to translate in English, then it would be please cooperate with me. मतलब you may know the meaning of this. Okay. मतलब मेरे साथ अच्छे से व्यवहार करो type of like this. Okay. So this whenever you are going in meetings or anything and you introduce yourself, then you have to speak this phrase. मतलब अभी पहले बार आप कोई बॉस को मिल रहे हो या आप पहले बार कोई क्लास में जा रहे हो, तो आप ऐसे खुद को ये करोगे, इंट्रोड्यूस करोगे. कि आई स्पीक अगेन, आई टेल अगेन. हाजमे माश्ते सांकारुकु देस. दोजो योरोशिको ओनेगाशिमास. ओके. अब मैं मेरा नाम जापानीज में कैसे लिखता हूँ वो बताता हूँ. 1 minute. Okay, so this character which I'm writing now is सा. ओके. फिर ये है नो. ये है का.
ये है रू, और ये है पू। ओके, सो सा, सांग, का, रू एंड पू। मैं आपको अच्छे से सब वर्ड्स बाद में एक लेक्चर में बताऊंगा, सिर्फ टू गिव यू अ ब्रीफ आइडिया व्हाट दिस लेटर्स आर। ओके, सो आई ड्रू देम। सो अभी आप इन जनरल किसको इंट्रोडक्शन दे रहे हो, दोस्तों को या शॉपकीपर वगैरह वगैरह को? तो फिर आप ये इंट्रोडक्शन दे सकते हो, वाताशी वा सांकारुपु देस, नहीं तो वाताशी नो ओनामाए वा सांकारुपु देस। ओके, सो अब हम पहला वो फ्रेज है उस पे जाते हैं। वाताशी वा सांकारुपु देस मतलब वाताशी वा इज मेरा और माई और आई। ओके, सो आई, मैं, वाताशी वा इज आई, देन सांकारुपु इज my name, so मैं संकल्प एंड दिस इज हु। तो वाताशी वा सांकारुपु दिस इज मैं संकल्प हूँ। ओके, फिर नहीं तो माई, आई एम संकल्प। ओके, सो फिर और नेक्स्ट फ्रेज है वाताशी नो ओनामाए वा सांकारुपु देस। ओके, वाताशी नो इज मेरा। तुम लोग डिफरेंस, ओके, यहाँ दो पार्टिकल्स, एक्चुअली पार्टिकल्स तुम लोग को बाद में अच्छे से समझाऊंगा। इधर वाताशी के बाद वा है और इधर नो है, इधर ये टाइप ऑफ आई हो जाता है वाताशी वा मतलब, और वाताशी नो मतलब मेरा हो गया। और ओनामाएवा इज मेरा नाम, संकल्प, वापस देश मतलब है। सो वाताशिनो मेरा, ओनामाएवा नाम, सांकारुपु संकल्प, देश है। ओके, सो माय नेम इज संकल्प। ओके, सो नाउ anyone can introduce themselves fast. Okay, however means फॉर्मल में भी बोल सकते हो, नहीं तो जनरल इंट्रोडक्शन के टाइप में भी बोल सकते हो। कुछ कुछ लोगों ने पहले किया था तो फिर दैट्स नाइस। मतलब वाताशिवा दीपिका दिस इज राइट, देन हाजिमी माश्ते निधि दिस इज ऑल्सो राइट। या हाजिमी माश्ते मात्सी दिस करेक्ट। हाँ, अब हम लोग एडिशनल इंफॉर्मेशन में जाएंगे। तो अभी ये आपके लिए नए वर्ड्स रहेंगे। अब वाताशिवा मतलब आपको पता है, तो वाताशिवा गा गाकू सही देस, ये तो जल्दी जल्दी में गाक सही देस, वाताशिवा गाक सही देस। ओके, सो वाताशिवा गाक सही देस इज आई एम अ स्टूडेंट। वाताशिवा इज आई एम एंड गाक सही देस इज स्टूडेंट। ओके, मीन्स आई एम अ स्टूडेंट मतलब मैं विद्यार्थी हूँ। ओके, वाताशिवा इंदोजिन देस, आई एम व्हाट, दिस इज क्विज, सो इंदोजिन मतलब क्या? ट्रांसलेट वाताशिवा इंदोजिन देस। या करेक्ट, आई एम इंडियन, करेक्ट। Okay, so now how will you write Indojin? जरा सा slant हो रहा है वो, गलत। Okay, this is E, this is N, which was in my name also. Then this is To, Ten, Ten. To Ten Ten is Do. Okay, this thing is called Ten Ten. This thing. Okay, तो ये इंदो हो गया। अभी जिन, तो मैं अभी ये कांजी में जिन लिखता हूँ। So this is Indojin if you will write it, or you can write it as
दो, देन जी, देन no. Okay, so these are general introductions, kind of general introduction. So Vatashiva Gakse, this is मैं विद्यार्थी हूँ. वाताशिवा इंदोजिन, this is मैं भारतीय हूँ. फिर नेक्स्ट है वाताशिवा मुंबई नी सुंदेमस. सो मुंबई को जापानीज में मुंबई बोलते हैं क्योंकि उनमें वो कैरेक्टर्स है मुंबई बोलने के लिए, जो जनरली बाकी के फॉरेन नेम्स प्रोनाउंस करने के लिए नहीं रहता. सो वाताशिवा मुंबई नी सुंदेमस इज, वाताशिवा इज अगेन आई, मुंबई इज मुंबई, नी इज मैं, सुंदेमस इज रहता हूँ. तो मैं मुंबई में रहता हूँ. आई लिव इन मुंबई. सो जापानीज को मोस्टली इंग्लिश से ट्रांसलेट करने से अच्छा हिंदी में जल्दी से मतलब इजीली ट्रांसलेट हो जाता है, क्योंकि हम लोग भी कुछ कभी कभी पार्टिकल्स, मतलब हम लोग इधर वो पार्टिकल्स नहीं बोलते, पर हम लोग भी इनके जैसा, जैसे कि इधर वाह है तो नहीं है, वैसे हम लोग भी यूज करते हैं हिंदी में. ओके, सो अगेन नाउ if this is Gakse, okay, so if someone is doctor and then they want to introduce themselves, then that would be Watashiwa Isha this. Isha जापानीज में डॉक्टर रहता है. ओके, अभी मैं आपको सिखा रहा हूँ. तो वाताशी नो आनातानी निहोंगो नो सेंसेई देस मीन्स आई एम योर जापानीज टीचर. ओके, ये बहुत बड़ा सेंटेंस है बट आई ट्राई टू राइट. वाह, बहुत बड़ा सेंटेंस है लिखने में. I'll write the difficult words from the presentation, okay, or the new words. So now इधर न्यू वर्ड है मुंबई. तो अभी मुंबई कौन से स्क्रिप्ट में लिखेंगे? So the question is, how will you differentiate between नी and नी? अब आप खुद सोचो, कॉमन सेंस क्या आएगा? मैं मुंबई दो रहता हूँ, ऐसा तो नहीं होएगा. मैं मुंबई में रहता हूँ ही होएगा. So how will नी as a number come here? Okay, it's common sense. You have to find the thing from the context of the sentence. इधर नी नंबर जैसे नहीं आएगा, क्योंकि हम मैं मुंबई नी दो कैसे डाल सकते हैं आप इधर? मैं मुंबई दो रहता हूँ, ऐसा नहीं आएगा. सो फ्रॉम द कॉन्टेक्स्ट यू हैव टू फाइंड आउट. एंड मोस्टली दिस इज अ नाउन, वो आपको बाद में समझेगा. नाउन के आगे मोस्टली ये आता है, पार्टिकल आता है. सो दिस हियर नी इज अ पार्टिकल, कि जापानीज में इसको पार्टिकल. तो हियर दिस इज पार्टिकल. ओके, इधर भी वहां के आगे पार्टिकल है. watashi is me, I, that's also a noun, therefore there's a particle after it. Okay, so is this clear? इधर नी क्यों आया, टू क्यों नहीं आया? what do you meant by नी, then should be said to. हाँ, हाँ, yeah. if I say नी, then you can say it's two. It's not wrong. but in this context, इधर सेंटेंस में नी है, और इस कॉन्टेक्स्ट में नी एक पार्टिकल है, तो वो मैं जैसे आएगा. क्लियर? और नी इज नॉट इक्वल टू मैं. ओके, इस कॉन्टेक्स्ट में वो मैं है. वो आपको बाद में जब आप न्यू न्यू सेंटेंसेस पढ़ोगे तो आपको समझेगा नी और भी उसका और भी मीनिंग रह सकता है. सो नेक्स्ट स्लाइड. सो दिस आर द डेज ऑफ द वीक. ओके, सो अभी इधर दो स्क्रिप्ट्स है. कौन से दो स्क्रिप्ट्स है? हेलो, एम आई ऑडिबल? ना ना, इधर काताकाना नहीं है, इधर हिरागाना और कांजी है. तो अभी इसमें से आप गेस करो कौन सा हिरागाना है. पहला वाला हिरागाना है, ये वाला हिरागाना है, ये वाला हिरागाना है, या ये वाला कांजी है, या ये वाला कांजी.
The first one is hiragana, okay? The second one is kanji. The one thing I forgot to tell you last class, कांजी बहुत रहते हैं, मतलब ऑफिशियल कांजी 2000 है। और पर आप नेटिव जापानीज लोगों से पूछोगे तो वो लोग नंबर कुछ 50,000 तक भी बोल देंगे। पर हम मोस्टली दे ओनली टीच 2000 कांजीज, ओके? एंड कांजीज आर वेरी कॉम्प्लेक्स देन हिरागाना और काताकाना। Okay, so yeah, the first is hiragana, the second is kanji. Okay, so the days of the week. I'll pronounce this in Japanese, then I'll explain. Okay, so Monday is Getsuyobi, Kayobi, Suiyobi, Mokuyobi, Kinyobi, Doyobi, Nichiyobi. Okay, so Monday Getsuyobi, Tuesday Kayobi, Wednesday Suiyobi, Thursday Mokuyobi, Friday Kenyobi, Saturday Doyobi एंड संडे निचयोबी। तो यहाँ एक सफिक्स आ रहा है, देर इज अ सफिक्स। हाँ, वो सफिक्स क्या है? बी मीन्स डे एक्चुअली, बट इधर और एक सफिक्स है। बी मीन्स डे, या एक्चुअली ही मीन्स डे, बट इधर बी यूज किया है, बी ऑल्सो मीन्स डे। हाँ, यहाँ यो और बी है, तो दीज आर द सफिक्सेस। ओके, अगेन इन हियर कांजी में भी देखोगे तो ये यो की कांजी है, ये मैं जिस पे कर्सर घुमा रहा हूँ। और ये ही की कांजी है, पर उसको अभी बोलते समय बी बोलते हैं। दिस कांजी हियर विच इज ऑफ ही, दिस रिप्रेजेंट्स डे। ओके, सो हम अभी इधर भी इंग्लिश में भी हम लोग मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे इसमें डे का सफिक्स है, तो ये सफिक्स जापानीज में भी यो बी के इसमें यूज होता है। ओके, सो वापस टेक अ क्विक, okay, just learn it, don't by heart it, but just for now learn it. Okay, I'll speak again, I'll tell again. Getsuyobi, Kayobi, Soyobi, Mokuyobi, Kenyobi, Doyobi, Nichiyobi। इधर आप देखोगे, इधर दो कांजी है, मतलब सेम कांजी है। सो ये एक कांजी को हम लोग बहुत बार प्रोनाउंस कर सकते हैं। अभी इधर हम लोग ने निची के जैसे भी प्रोनाउंस किया है और बी के जैसे भी प्रोनाउंस किया है। वो आप बाद में, मतलब बाद में पढ़ोगे तो फिर आपको कैसे डिफरेंशिएट करने का वो समझ में आ जाएगा। सर बट सेकंड इज नेम विच आर नॉट कम। नो नो, दिस गेट्सुयोबी और ये भी गेट्सुयोबी ही है। मंडे को आप लिख सकते हो काताकाना में, विच उसको लिखने में जाओगे तो मॉनडे होएगा। ओके, बट ये इसका ही ये रिटर्न फॉर्म है। ये हिरागाना और काताकाना इसका ही है, so that's why we have not written in katakana script. Okay, okay, so now इधर मैं रख रहा हूँ, मतलब स्क्रीन ऐसे ही रख रहा हूँ। अब जल्दी से बताओ, सैटरडे क्या होगा? दो ही होगी, करेक्ट। या, सो नाउ how will you write दो योगी? This is तो, okay, and when we add 10 it becomes दो। so ये दो हो गया, फिर ये यो हो गया, फिर इधर ऊ आएगा। सो ओ प्लस ऊ मिक्स, हम लोग हिंदी में ओ करते हैं ना, वैसे वो दो यो भी होगा। दो यो भी नहीं होगा, मतलब ओ की ऊ के वजह से हम लोग उसको प्रोलॉन्ग करते हैं, उसको मतलब यो को और प्रोलॉन्ग करेंगे, दैट दिस वुड बी दो यो भी। ओके, देन दिस इज की, 1 minute I wrote it wrong। he then becomes b, so this is दो यो बी। फिर संडे को क्या बोलते हैं, इफ एनीवन कैन रिमेम्बर? संडे सिंपल है क्योंकि उसमें दो सेम कांजी है।
So no one remembers. I'll take the presentation. So Sunday is Nichyobi. Okay. So now we'll go to the next one, which is days. Okay. सो अभी हम लोग परसों बोलते हैं, कल बोलते हैं, आज। फिर हम लोग हिंदी में कल को दो कॉन्टेक्स्ट में यूज करते हैं, वो समझ में आ जाता है. त्या परवा, काल, आज, उद्या आणि परत परवा असतं मराठीमध्ये. बट इन जापनीज दे हैव फिक्स्ड प्लेसेस फॉर डे बिफोर यस्टरडे, देन टुडे, टुमारो एंड डे आफ्टर टुमारो. ओके, सो इधर अभी बताओ, पहला वाला जो मैंने लिखा है वो कांजी में है या हिरागाना में? हेलो, ये हिरागाना में या काताकाना में? सॉरी, हिरागाना में या कांजी में? So I assume no one knows the answer. So this is in kanji, okay? और ये इधर भी देखो डे का कांजी, बिकॉज दीज ऑल थिंग्स, दिस डेज ऑफ द वीक एंड ये सब डे से रिलेटेड है, इसलिए इधर डे का कांजी है सब में. ओके, इधर भी सब डे से रिलेटेड है, इसलिए ये सब डे का कांजी है. बुक शेल्फ जैसा है वो. ओके, सो परसों को जापानीज में ओतोतोई बोलते हैं, ओतोतोई. फिर कल को, नहीं तो काल, कालला जापानीज मध्ये किनो बोलते हैं, किनो. इधर भी प्रोलॉन्ग्ड साउंड है. ओके, सॉरी सॉरी, एवरीवन रोट द आंसर, आई डिडंट स्क्रॉल डाउन. सॉरी एवरीवन, सॉरी. ओके, सो ओतोतोई इज परसों, किनो इज कल, क्यो इज टुडे और आज, आष्टा इज कल और उद्या, आसाते इज परसों नेतर परवा. ओके, सो इधर ये है, ये क्यों में वो कांजी है, वो आज की कांजी है, मतलब नाव की कांजी है. सो आज का दिन मतलब टुडे. ओके, सो दिस, दैट्स हाउ यू रीड कांजी. फिर ये है, ये डे बिफोर की कांजी है, इसलिए डे बिफोर टुडे इज यस्टरडे, नहीं तो डे बिफोर डे इज यस्टरडे, मतलब कल का दिन. फिर इधर इची है, ये इची की कांजी है. So this becomes one day before this day means today. That's why sorry, I said wrong. इधर ये है और इधर ये क्या बोलते हैं, पीछे की कांजी. So one day before kino becomes ओतोतोई. ओके, सो आष्टा के इधर ये कल की कांजी है और कल का दिन ये है, ये कल की कांजी है. कल का दिन becomes tomorrow और दिस इज द नेक्स्ट कांजी ऑफ नेक्स्ट, नेक्स्ट डे, इसलिए टुमारो. फिर इधर और एक दो कांजी है, ये नेक्स्ट की कांजी है और ये आफ्टर की कांजी और डे की कांजी, मतलब डे आफ्टर नेक्स्ट, मतलब इसके आगे का दिन, वो हो जाएगा असत्य. ओके, सो ओतोतोई, किनो, क्यो, आस्ता, असत्य. अभी मुझको बोलना है कि मैं कल पुणे गया था. सो मैं बोलूंगा वाताशी वा आस्ता पुणे ए इकिमास्ता. सॉरी, मैं कल गया था, सॉरी सॉरी. वाताशी वा किनो पुणे ए इकिमास्ता, मतलब वाताशी वा, 1 minute, I'll write this sentence so you will know.
This will take time. Okay. So wa ta she शिवा किनो 1 minute. हाँ. सो पुणे किस में आएगा, कौन से स्क्रिप्ट में? हेलो. 1 minute. I am unable to see any text. हाँ, काटाकाना करेक्ट. पुणे ये नेका कैरेक्टर है काटाकाना में. 1 minute. पुणे ए इकी माश मा माश ता. और उनके इधर फुल स्टॉप रहता है, वो गोल रहता है, मतलब हम लोग इंग्लिश में कैसे हम लोग सिर्फ डॉट यूज करते हैं वैसा नहीं रहता. सो इधर दिस वाताशय मतलब मैं, किनो मतलब कल, पुणे ए मतलब पुणे में, इके मास्टर मतलब गया था. तो मैंने लास्ट टाइम बोला था कि नी इज नॉट पर्टिकुलरली मैं, इधर ए यूज हुआ है. वो भी क्या बोलते हैं, मे के जैसे यूज हो सकता है. ओके. इट मीन्स द पार्टिकल इज मोस्टली व्हाट वी से, वो वर्ब के इसमें चूज होता है, मतलब वर्ब जो रहेगा उसके हिसाब से हम लोग पार्टिकल चूज करते हैं. तो इधर इकेमास्टा वर्ब है, मतलब गया था, तो फिर इसलिए इधर ए का पार्टिकल आएगा. सो हर एक वर्ब के लिए अलग अलग पार्टिकल रहता है. सो किनो वाताशिवा नहीं. हाँ, किनो भी ऐसा भी चल सकता है. कल मैं पुणे गया था, पर इधर इक्कीमास है, इक्कीमास मतलब पुणे जा रहा हूँ, मतलब इट वुड बी मोस्ट, इक्कीमास इज प्रेजेंट, नहीं तो फ्यूचर, इक्कीमास्टा बिकम्स पास्ट. ओके. सो फिर हाँ, तो अब मैं बोलूंगा मैं कल मॉल जाने वाला हूँ. तो इसमें कौन सा ये क्या यूज होगा इसमें से? करेक्ट, आस्था. तो फिर इसमें नी इज इम्पोर्टेंट इन सेंटेंस. आई डिडंट गेट यू. हाँ, आस्था आएगा, करेक्ट. तो फिर उसमें हम लोग जापानीज में बोलेंगे बाताशिवा. मॉल एक फॉरेन वर्ड है इसलिए. आस्था कल, बाताशिवा मैं, मोरू मतलब मॉल, ए मतलब मैं, इकिमास. ओके. वाताशिवा, सॉरी, आस्था वाताशिवा मोरू ए इकिमास. मॉल को जाऊंगा. ओके.
काताकाना। क्या, नहीं समझा मुझे। सो सॉरी। सो वंस अगेन, ओतोतुई, किनो, क्यो, आस्ता, असत्ते। सो द नेक्स्ट वन, मंथ्स। सो जापानीज में मंथ्स याद करना बहुत इजी रहता है। सिर्फ इधर गात्सु यूज करते हैं, विच इज सफिक्स फॉर मंथ। ओके, सो द फर्स्ट मंथ इचिगात्सु, मतलब ये तो सब नंबर्स पता है। ओके, सो फिर इचिनी सांशी ये सब नंबर्स है। तो इचिगात्सु फर्स्ट मंथ विच इज जनवरी, निगात्सु सेकंड मंथ फेब्रुअरी, सॉरी, सांगात्सु थर्ड मंथ मार्च, शिगात्सु फोर्थ मंथ अप्रैल, गोगात्सु फिफ्थ मंथ मई, रोकुगात्सु सिक्स्थ मंथ जून, शिचिगात्सु सेवेंथ मंथ जुलाई, हाचिगात्सु एट्थ मंथ अगस्त, कुगात्सु नाइन्थ मंथ सितंबर, जुगात्सु टेंथ मंथ अक्टूबर, जुइचिगात्सु 11th month November, Junigatsu 12th month December. So ये, I guess I feel that months are very simple in Japanese. So इधर सिर्फ एक ही suffix यूज होता है which is gatsu. So what is the meaning of ni? Okay, ni numbers में दो है, ni एक पार्टिकल है। okay, दोनों अलग अलग है, पर वो कॉन्टेक्स्ट के हिसाब से हम लोग को बेस्ड करना है। इधर वाताशिवा किसने किनो वाताशिवा पुणे ने इकिमास लिखा है, वो गलत है, क्योंकि इकिमास के पहले ए पार्टिकल आता है, नी पार्टिकल नहीं आता। सो आर यू क्लियर नाउ? हाँ, तो फिर अभी ये कांजी है और ये हिरागाना है। हिरागाना हम जैसे बोलते हैं वैसे ही लिखते हैं, बट कांजी एक, हर एक कांजी को डिफरेंट डिफरेंट मीनिंग रहता है। तो इधर ये वन की कांजी है, ये टू की है, ये थ्री की है, ये फोर, ये फाइव, ये सिक्स वगैरह वगैरह। और ये है ना, ये मंथ की कांजी है। ओके, सो द वन मंथ और फर्स्ट मंथ जनवरी। ओके, सो ऐसा है ये। सो इचिगात्सु, निगात्सु, सांगात्सु, शिगात्सु, गोगात्सु, रोकुगात्सु, शिचिगात्सु, हाचिगात्सु, कुगात्सु, जुगात्सु, जु इचिगात्सु एंड जुनिगात्सु। सो दिस आर द मंथ्स इन जापानीज। सिर्फ इधर दो चीजों को अटेंशन देना है, विच इज शिगात्सु एंड कुगात्सु। तो हम लोग, मतलब इधर सिर्फ, सॉरी, इधर सिर्फ शी यूज होएगा, यॉन नहीं यूज होएगा, यॉन गात्सु इज रॉन्ग। ओके, सिर्फ शी यूज होएगा। और इधर मोस्टली हम लोग नाइन को क्यू बोलते हैं, बट मंथ्स के हिसाब में वो कू होएगा। ओके, सो इट वुड बी कुगात्सु। सो नाउ व्हाट विल बी से, फेब्रुअरी को जापानीज में क्या बोलेंगे? नीगात्सु, करेक्ट। सितंबर को कुगात्सु। तो ये तुम लोग में लिखेंगे। सो सितंबर वुड बी कू, का तेन तेन, ये है ना, ये दो लाइंस उसको तेन तेन बोलते हैं। दिस चेंजेस द वर्ड्स। ओके, तो ये मोस्ट, ये लेटर है एक्चुअल में वो है का, पर इसको तेन तेन लगा के वो गा हो जाता है। तो कू गात एंड दिस इज सु। कुगात्सु, दिस इज राइट, बट दिस, 1 minute।
Kyugatsu, ये रॉन्ग है, ये करेक्ट है। ओके, सो अक्टूबर को क्या बोलोगे? अक्टूबर, करेक्ट, जुगात्सु। दिसंबर, करेक्ट। अब समझो मेरा बर्थडे अप्रैल में है, ओके। सो फिर मैं बोलूंगा वाताशी नो तांजोबी वा सॉरी, वाताशी नो तांजोबी वा शिगात्सु नि आरिमास। ओके, वाताशी नो मतलब मेरा, तांजोबी म्हणजे तांजोबी मतलब माय बर्थडे, और नियरिमास ये वापस पार्टिकल है। ओके, सो वाताशी नो तांजोबी वा शिगात्सु नि आरिमास म्हणजे म्हणजे क्या बोलूं? मेरा बर्थडे अप्रैल में है। ओके, फिर जनवरी को क्या बोलोगे? ओके, व्हेन इज होली? इन विच मंथ होली होता है? कौन से मंथ में होली होता है? करेक्ट। फिर क्रिसमस कौन से मंथ में होता है? ओके, या, राइट राइट, जून ही गट्स। So the next is seasons. So there are four seasons in Japan. हारू मतलब स्प्रिंग, नात्सु मतलब समर, आकी मतलब ऑटम, फूयू मतलब विंटर। और ये उनके इधर बहुत एक्सट्रीम होता है, मतलब नात्सु मतलब उनके इधर समर भी बहुत हाई टेम्परेचर रहता है उनके इधर। फिर विंटर्स में भी बहुत ऐसा लो टेम्परेचर तक जाता है, सो दे हैव एक्सट्रीम वेदर कंडीशंस। सो फिर ये हारू मतलब स्प्रिंग, नात्सु मतलब समर, आके मतलब ऑटम, और फूजो मतलब विंटर। ये सब उसके कांजी है, और ये सब हिरागाना में उसको लिखा है। सो देर आर फेस्टिवल्स बेस्ड ऑन सीजन्स, ओके। सो हारू में उनके चेरी ब्लॉसम्स ब्लूम होते हैं। सो चेरी ब्लॉसम्स उनके इधर टाइप ऑफ मेन टूरिस्टिक अट्रैक्शन भी है, और दे सेलिब्रेटेड एज अ फेस्टिवल, ओके। मतलब सब तभी तभी भी चेरी ब्लॉसम्स ब्लूम होते हैं, तो वो सब फैमिली एक साथ जाके, रहते, तो सब फ्रेंड्स एक साथ जाके वो पेड़ के नीचे पार्टी करते हैं। ओके, सो दे एंजॉय द स्प्रिंग बाय दिस वे। सो नात्सू में उनके इधर बहुत गर्म रहता है, समर में बहुत, मतलब बहुत गर्म रहता है, और रेन भी उनके इधर हैवी होता है। आकी में उनके इधर जैसे कि बहुत सारे हम लोग के कंट्री में मोस्टली ऑटम नहीं होता, जैसे बाकी के कंट्रीज में होता है। इन ऑटम द कलर ऑफ द लीव चेंजेस इन मेनी कंट्रीज, ओके। सो मोस्टली इट इज रेड, ओके। इनके इधर भी वैसे ही रेड कलर के फ्लावर्स आते हैं, रेड कलर के लीव्स हो जाते हैं। देन फूयू भी इनके इधर बहुत, मतलब विंटर भी बहुत एक्सट्रीम होता है। विंटर इज टू एक्सट्रीम। सो सब इनके इधर सब सीजन्स मोस्टली एक्सट्रीम ही होते हैं। नात्सू रेन, समर और रेन भी बहुत एक्सट्रीम रहता है, और विंटर भी कभी कभी बहुत एक्सट्रीम तक जा सकता है। ओके, सो दिस इज द फोकस हियर। सो there's nothing more to explain here. You have to just learn or memorize this words, okay? This and days का भी याद रखो, ये और ये याद कर रखना पड़ेगा। और ये सिंपल है, मंथ सिंपल है, और इंट्रोडक्शन भी याद रखना पड़ेगा। So we'll go to the next slide, which is colors. तो मैंने लास्ट टाइम एक कलर का एग्जांपल दिया था, which is आका रेड। So we'll first say all the numbers, sorry, say all the colors in Japanese. Ao, blue. Ao, aka, shiro, kuro, midori, dai iro,
मोमोइरो, मुरासाकी, कीरो, चाइरो, हाइरो, and mocha. Mukka. Okay, it's not mocha, it's mukka. Okay, so mostly इतने येलो तक कलर से याद रख लिए तब भी अच्छा है, और नहीं तो ब्राउन तक. दिस टू कलर्स आर नॉट दैट इम्पोर्टेंट. सो वो लोग इधर इन लोगों ने एक्चुअल में ऑरेंज को क्या बोला है वो लिखा है, बट मोस्टली ऑरेंज ही करके भी बोल सकते हो तुम लोग. ओके, सो जापानीज पीपल यूज वुड इंटेंशंस इन प्रोपोर्शन. आई डोंट नो अबाउट दैट. ओके. ओके, सो ऑरेंज कैसे लिखोगे? ऑरेंज कौन से स्क्रिप्ट में आएगा वो बताओ. Someone's mic is katakana, correct. Now we'll try it orange. One, 1 minute. ये हो गया ओ, फिर ये हो गया रे, ये हो गया न, और ये हो गया जी. सो ओ रे जी के ओरेंजी. यू कैन ऑल्सो से ऑरेंजी, और इधर वो दिया है वो दाई दाई इरो. सो मोस्टली कलर्स को हम लोग ई सफिक्स भी यूज कर सकते हैं. ओके, सो ब्लू को हम लोग आओ ई भी बोल सकते हैं, रेड को आकाई, व्हाइट को शिरोई, कुरोई. ठीक, सो दिस आर एडजेक्टिव्स. कुछ कुछ एडजेक्टिव्स के आगे ई सफिक्स आता है, पीछे ई सफिक्स आता है. ओके, सो ये क्विक मेमोराइज कर लो, फिर मैं क्विज टाइप ऑफ लूंगा सिंपल सिंपल कलर्स के. सो व्हाट कलर इज द स्काई? व्हाट इज द कलर ऑफ स्काई? या, so now how will you write aoi? ये है आ, ये है ओ, और ये है ई. आ ओ ई, ब्लू. सो जापान के फ्लैग में कौन से दो कलर्स है? सर इन कलर स्लाइड यू हैव नॉट रिटन इन इंग्लिश लैंग्वेज होनी चाहिए, है ना? ब्लू. ओके 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 ओके, या. I'll write. Okay, I'll explain here. Okay, so 1 minute, I forgot to write. So ये है ना ब्लू, उसको आओ बोलेंगे. रेड इज आका, व्हाइट इज शिरो, ब्लैक इज कुरो, green is midori. Then forget about orange, you can say orangey. Then forget about rose pink, violet. And yellow is kiro, and brown is
चाइरो। ओके। फन फैक्ट, तुम लोग को शिनचैन का कुत्ते का नाम याद है? वो कौन सा कलर था? उसको शिरो बोलते थे, एंड ही वॉज इन वाइट कलर, सो इसलिए ये देखो शिरो। वैसे तुम लोग याद कर सकते हो। व्हाइट एंड रेड, देर आर टू कलर्स इन फ्लैग विच इज व्हाइट एंड रेड। सो शिरो और आका, शिरोई और आकाई। फिर शिरो मतलब वाइट, वो हो गया। फिर एक इसमें शिनचैन के कुत्ते और एक था जो कुरो बोलते थे उसको, ब्लैक कलर का था। सो वैसे तुम लोग कुरो को याद रख सकते हो। ओके। सो मिदोरी, दिस आर द मेन कलर्स, ब्लू, रेड, white, black, green, and yellow and brown and orange. These are the main colors. These four are not that important for now. So, what was I going to say? Okay, I don't know if they use wood utensils more. Someone asked, so I don't know about that. They may use more wooden utensils. So we'll take a quick revise of what we learned. So self introduction. Hajimashite Sankarupudes, Dozo Yoroshiku onegaishimasu. फिर जनरल इंट्रोडक्शन, वाताशी वा सांकारुपदेश, वाताशी नो ओनामाए वा सांकारुपदेश। फिर एडिशनल इंफॉर्मेशन, वाताशी वा गाक्साई देश और वाताशी वा इंदोजित देश, नहीं तो वाताशी वा मुंबई नी सुंदेइमास। फिर डेज ऑफ द वीक, ये मैं सजेस्ट करता हूँ कि आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो क्योंकि ये याद नहीं होएगा। सो गेत्सु योबी, खाई योबी, सुई योबी, मोको योबी, किन योबी, दो योबी, निच योबी। देन डेज, परसों को तोतोई, कल को किनो, आज को अक्यो, फिर वापस कल को आश्ता और परसों को आ सकते हैं। फिर मंथ्स, इचिगात्सु, नीगात्सु, सांगात्सु, शीगात्सु, यो सॉरी गोगात्सु, रोकुगात्सु, शिचिगात्सु, हाचिगात्सु, कुगात्सु, जुगात्सु, जू इचिगात्सु, जू नीगात्सु। फिर seasons, there are 4 seasons in Japan. Haru, which is spring, Natsu, which is summer or rain, Aki, which is autumn, Fuyu, which is winter. Then colors, Ao matlab blue, Aka matlab red, Shiro matlab white, Kuro matlab black, green, Midori matlab green, Orange Nito Dai Dairo matlab orange, फिर Momoiro matlab rose pink, Murasaki matlab violet, Kiro matlab yellow, Chairo matlab light brown, हाई सॉरी हाईरो मतलब ग्रे, एंड मक्का मतलब डीप रेड। सो हम लोग के फ्लैग में कौन से कलर्स रहते हैं? मैं इधर ऐसा रखता हूँ। इफ मैं इधर इंग्लिश लिखना भूल गया, मैं नेक्स्ट स्लाइड में मतलब नेक्स्ट क्लास में इसके इंग्लिश में लिख के। सो प्लीज शो सेकंड एंड थर्ड स्लाइड टू टेक स्क्रीनशॉट। ओके। आका इज नॉट ब्लू, आओ इज ब्लू, आका इज ग्रीन। इंडियन फ्लैग में कौन से कलर्स रहते हैं? देयर आर 4 कलर्स, राइट? याशिरो इज देयर, व्हाइट इज देयर, करेक्ट। देन एक तो आप सिंपली बोल सकते हो विच इज ऑरेंजी। देन वाइट मतलब शिरो, मिदोरी मतलब ग्रीन, किस, और अशोक चक्र में ब्लू रहता है विच इज आओई। ओके। सो कौन से रहते हैं? ऑरेंजी और दाइदाइरो, शिरो, मिदोरी
Rahul. Okay, so I guess that ends the class. Arigato gozaimasu. So how will you reply to this now? Arigato gozaimasu को आप क्या बोलोगे उसके रिप्लाई में? So I'll stop sharing the screen. So sayonara everyone. Minasan sayonara. Sayonara.